Law is a field which exposes you to so many kinds of real life problems, and if you are doing public interest litigation, then exposes you to very important and very interesting issues of policy, rights, all kinds of issues which are critical for a society, and it gives you a kind of ringside view into those issues and brings you in contact with some of the most important experts in that field, so that you are able to learn about important new things while you are doing your law as a lawyer. So it's true that understanding your rights is very empowering. It's also true that fighting for the rights of people whose rights are being crushed or violated is even more important, because in this country and in many other countries there is so much injustice that we see. So many people whose rights are being violated. अरे तुम भी फटी जीन्स पहने हो? तो हमने अभी नोटिस किया. अच्छा, so it's there's enormous injustice happening in this world, and unfortunately, at least in India, most people are not in a position to fight for their rights and not in a position to fight for justice. And even more unfortunately, in India, the judicial system has become so decrepit that it is unable to deliver justice to the vast majority of the people. So if you ask this question today, अगर आज हम ये पूछें कि भाई अच्छा हिंदुस्तान में कितने लोगों को जुडिशरी के थ्रू जस्टिस मिल जाता है, then the honest answer would be कि maybe 1-2%. उसका रीज़न ये है कि इस कंट्री में more than 80% people are so poor that they cannot afford to engage lawyers. And without lawyers, because the procedural complexities of courts is such that without lawyers, a lay person, especially a poor person, cannot negotiate those procedural complexities. वो तो बेचारा अपना केस कोर्ट में फाइल ही नहीं कर पाएगा. अगर उसको अक्यूज़ किया जाए, द पुलिस कैचेस होल्ड ऑफ अ पुअर स्ट्रीट वेंडर और रिक्शा पुलर एंड उसके खिलाफ कोई झूठा केस बना दे, कुछ भी आजकल जो बहुत होता है, तो दैट पुअर स्ट्रीट वेंडर विल नॉट इवन बी एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ, और वो बस हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है पुलिस के सामने, जज के सामने कि भाई हमको माफ़ कर दीजिए, या चाहे उसने कुछ भी गलत नहीं किया. And that is why the vast majority of the people in jails in India today are not convicts, but they are under trials, who are people who are unable to even obtain bail. And in a very large number of cases, people who spend years in jail get acquitted finally, and we find that they were totally innocent. तो ये तो एक थ्रेशोल्ड प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद पीपल हु आर एबल टू एंटर द लॉ कोर्ट्स, हु कैन एंगेज अ लॉयर एट्सेट्रा, उनके भी केसेस में तारीख पर तारीख लगती रहती है, इनटर्मिनेबली डेकेड्स तक चलते रहते हैं ज़्यादातर. एंड अल्टीमेटली जब फैसला होता भी है, मान लो 10-12 साल के बाद उसका फैसला हुआ, तो वेरी ऑफन वो गलत फैसला हो जाता है. एंड उसका रीज़न, उसके कई रीज़न्स हैं.
एक तो खैर ये होता है कि कई बार उस आदमी का लॉयर जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, वो समझता ही नहीं है लॉ को, इश्यूज़ को, राइट्स को. हिंदुस्तान में vast majority of the lawyers today are quacks. They have no understanding. They have a law degree, they have a law license to practice in courts, but they have no understanding of law or rights at all. They are absolute quacks. दूसरी बात, जजेस की भी क्वालिटी ऐसी है कि बहुत सारे उसमें भी इनकॉम्पिटेंट हैं, मतलब relatively fewer, but there are a large number of incompetent judges also who don't understand the law, don't understand rights, and a substantial number of them unfortunately have also become corrupt. और वो करप्शन इस वजह से नहीं ख़त्म हो पा रहा, चलता जा रहा है, बिकॉज द लोअर जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द high courts, but the high courts are not accountable to anybody. उनके खिलाफ तो सिर्फ impeachment हो सकता है, और impeachment we have seen is a very very difficult impractical process. So एक बार आप हाई कोर्ट जज बन गए, तब आप राजा बन गए, आप कुछ भी कर सकते हैं. जो आपके खिलाफ अगर कोई बोले, आप मान लीजिए कोर्ट में ओपनली बैठ के कहते हैं कि अच्छा बोली लगाओ, तुम हमको ज़्यादा पैसा दोगे या तुम हमको ज़्यादा पैसा दोगे. सपोज कोई जज ऐसे कहता है, और जो ज़्यादा पैसा देगा उसके फेवर में हम केस डिसाइड कर देंगे. उस जज को कुछ किया नहीं जा सकता एक्सेप्ट इम्पीचमेंट, एंड इम्पीचमेंट हम लोग देख चुके हैं, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल तरीका है. और अगर किसी ने उसको एक्सपोज किया, उसके खिलाफ वो जज कंटेम्प्ट चला सकता है. So there is virtually zero accountability of judges of the higher judiciary, High Court and Supreme Court. And because lower court judges are accountable only to the High Court, therefore होता ये है कि as we saw in the Ghaziabad Provident Fund scam, or as we have seen even in this Punjab and Haryana के lower judiciary का एक हम केस कर रहे हैं, जो हमने जो मिनिस्टीरियल एम्प्लॉयज़ जो क्लर्क्स वगैरह थे ना, उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई कि भाई हम लोगों को ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है, लोअर जुडिशरी एक्सप्लॉइट करती है, हमसे डोमेस्टिक वर्क करवाते हैं, हमको पानी भी नहीं देते हैं, हमको स्टेशनरी भी नहीं देते हैं, और अगर हम ऑब्वियसली विदाउट स्टेशनरी एट्सेट्रा हम लोगों के पास 5-5 हज़ार फाइल्स हैं, जबकि 5,000 फाइल कोई जना हैंडल कर नहीं सकता. तो उन्होंने जब कंप्लेंट करी तो उनको मारा पीटा गया, और कईयों ने सुइसाइड कर ली. What is happening is that district judges and the district judiciary and the lower judiciary is exploiting the staff under their control. The high courts, as we saw in the Ghaziabad Provident Fund scam, are exploiting the district judiciary and the lower court judges under their control. So they expect, the district judiciary expects कि जो ministerial employees हैं वो हमारे घर का काम करेंगे, they will work as our domestic servants etc. The high court expects कि जब हम districts में जाएंगे तो ये district judges हमको shopping वॉपिंग करने ले जाएंगे, एंड वहाँ पर हम जो चीज़ें भी चाहें उठा लें, और कोई हमसे कोई कुछ पूछेगा नहीं, हमको कुछ पेमेंट नहीं करना होगा. अगर हम बोलें कि भाई हमारे घर में 5 AC लगवा दो, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम में यही हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट जजेस वर यूजिंग द मनी ऑफ द लोअर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इन ऑर्डर टू सेंड एयर कंडीशनर्स, व्हीकल्स एंड सो ऑन टू हाई कोर्ट जजेस. हाई कोर्ट जजेस इनको प्रोटेक्ट करते थे, एंड हाई कोर्ट जजेस को उससे सब फायदा मिल रहा था. तो ये पूरा सिस्टम हमारी जुडिशरी में चल रहा है, जिसकी वजह से करप्शन भी बहुत हो गया है. तो इसलिए डिसीशंस भी कई बार गलत हो जाते हैं. सो इस वजह से ड्यू टू ऑल दीज रीजंस very few people are able to get justice through the Indian judicial system. I am not saying कि किसी को भी नहीं मिलता,
या जो लोग अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं उनको भी नहीं मिलता। जैसे आज लेट्स से दिल्ली ये सीए प्रोटेस्ट्स और जो राइट्स हुए दिल्ली में, उसके कनेक्शन में दिल्ली पुलिस ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। उनके खिलाफ बिल्कुल झूठे केसेस, बहुत सारे लोगों, ज़्यादातर लोगों के खिलाफ बिल्कुल झूठे केसेस बना लिए हैं। जो लोग पीपल लाइक दिस देवंगना कलित और सफूरा जरगर और दुनिया भर के लोग हैं, इन्होंने कभी कोई वायलेंस करी नहीं, उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है वायलेंस का। इन्होंने बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट करे सीए के खिलाफ, विच इन माई व्यू इज़ अ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पीपल लाइक उमर खालिद एट्सेट्रा, उन्होंने हर बार ये बोला कि भाई अगर पुलिस वाले भी तुमको डंडा मारते हैं तो तुम डोंट रिस्पॉन्ड विथ वायलेंस। फिर भी उन लोगों को अरेस्ट किया हुआ है। और जो रियल परपेट्रेटर्स थे, पीपल लाइक कपिल मिश्रा वगैरह, जिन्होंने बिल्कुल राइट्स इंसाइट करे, वीडियोज़ हैं उनके, या जो पुलिस ऑफिसर्स थे जिनके वीडियोज़ हैं शोइंग कि वो सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, लोगों को जान से मार दिया, पत्थर फेंक रहे हैं, सो ऑन, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। नाउ इनमें से जिनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए हैं, उनके कईयों के, उनमें से बहुतों के बड़े अच्छे लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हु आर वेरी पब्लिक स्पिरिटेड एंड बहुत कम फीस या फीस ना लेकर वो लोग उनके केसेस लड़ रहे हैं। और इस वजह से उनमें से कुछ लोगों को बेल मिल गई हैं, कुछ लोगों को, बिकॉज देर आर पीपल, यंग public spirited lawyers who are fighting their cases, so some of them have been able to obtain bail despite this very hostile environment created by the police and the judiciary. Supreme Court भी इस समय इनकी इंडिपेंडेंस बिल्कुल कोलैप्स हो गई है और उसकी वजह से Supreme Court is kind of turning a blind eye to the violation of rights of people, etc. So while it is true that the judiciary and the judicial system is in very, very bad shape, it is more or less in a state of collapse. It is also true कि जहाँ पर there are competent and public spirited lawyers helping some victims of injustice or victims of violation of their rights, there many of them are able to get justice. Sooner or later they are able to get justice. दो कईयों को बहुत, अभी जैसे गुजरात में 126 लोगों को अरेस्ट कर लिया था, मुस्लिम्स को, ऑन द ग्राउंड दैट दे आर मेंबर्स ऑफ सिमी। अब 22 साल के बाद उनको डिस्चार्ज, दे हैव बीन डिस्चार्ज आफ्टर 22 ईयर्स, एंड इस 22 ईयर्स में उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। 1-2 साल तो सब लोग जेल में रहे, फिर बेल पर छूट गए थे, लेकिन their lives were completely destroyed during this time. So एक चीज़ which all of you need to bear in mind is that, you see, a lawyer is called a civilized warrior for justice. So lawyer, हिंदुस्तान में इस समय, even in this decrepit system, there are many lawyers who make a lot of money. There are people like Harish Salve, Mukul Rohatgi, etc., जो करोड़ों क्या 50 करोड़ से ज़्यादा, सिंघवी, उनकी इनकम इज मोर देन 50 करोड़ a year. But if you ask this question कि अच्छा उनके वजह से कितने लोगों को जस्टिस मिला, so the answer would be hardly any, because they are doing cases for all the crooks and the corporates etc., जिन्होंने हर तरह की बेईमानी करी है by and large. तो पैसा तो आप बना सकते हैं without really getting any justice to anybody or without advancing the cause of justice in this profession. If you are intelligent, these people are competent and intelligent. So if you are intelligent and competent, you can use this profession to make a lot of money without really advancing the cause of justice or substantially advancing the cause of justice.
But the main job of a lawyer is to be a civilized warrior for justice. आप तो जस्टिस को एडवांस करना चाहते हैं, दैट इज़ वाई यू हैव बिकम अ लॉयर. एंड जस्टिस को एडवांस करने के लिए एक पहली चीज़ जो हमको देखनी है कि ये जो सिस्टम इतना ख़राब हो गया है, इसमें इतनी तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इसको पहले ठीक करने की जरूरत. पहले नहीं, मतलब इसको भी जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक तो इस सिस्टम में जस्टिस मिलेगा ही नहीं. ज़्यादातर लोगों को, हार्डली किसी को मिलेगा, बहुत कम लोगों को मिल पा रहा है. और दूसरी बात यह है कि हम सिर्फ पैसा नहीं बनाना चाहते. ठीक है, पैसा थोड़ा बनाना ज़रूरी है टू सॉर्ट ऑफ मेक अ लिविंग, टू मेंटेन ए रीजनेबल लेवल ऑफ कंफर्ट इन आवर लाइव्स. वी डू नीड टू मेक सम मनी. एंड वो मनी जो जना कॉम्पिटेंट होता है, एनी कॉम्पिटेंट लॉयर, एनी कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंट पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर, उसके पास हर तरह के लोग आते हैं. वो भी आएंगे लोग जिनके पास पैसे हैं, और वो भी आएंगे लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं. तो जो पैसे वाले लोग हैं उनके भी आप केसेस कर सकते हैं. एंड from them you can earn a reasonable amount of money to make your ends meet or make a comfortable living out of it, out of the profession. But साथ में जब तक आप जस्टिस का कॉज एडवांस नहीं करते by at least doing some cases for those who are at the wrong end of, meaning कि who have been victimized, who have suffered a lot of injustice, whose rights have been violated, अगर आप उनके केसेस भी नहीं करते, then you are not fulfilling your role as a lawyer. So therefore वो करना बहुत ज़रूरी है if you want to be true to the calling of this profession. It is regarded as a noble profession because you are supposed to be a civilized warrior for justice. And therefore you have, if you want to be true to that calling, you have to take up some cases at least of those people जिनके जो who need some help, and some public interest cases also, because you see public interest cases करने में you can firstly advance public interest in a very big way. That possibility is there कि जहाँ बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये पुलिस रिफॉर्म्स का केस हम लोगों ने किया था, या लेट्स से नर्मदा बचाओ आंदोलन का केस किया, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स में तो हर एक आदमी अफेक्टेड है. टुडे द पुलिस इज एक्टिंग लार्जली एज एन इंस्ट्रूमेंट of those, the politicians who are in power. उनके कहने पर इनोसेंट लोगों के खिलाफ केस बना देते हैं, कई बार अपने करप्शन के लिए बना देते हैं, और जो गिल्टी लोग हैं उनको छोड़ देते हैं. अब ये कपिल मिश्रा वगैरह के खिलाफ इन लोगों ने कोई FIR भी नहीं रजिस्टर किया, जबकि इनके पूरे वीडियोस हैं शोइंग कि दैट दे वर इंसाइटिंग द राइट्स एक्सेट्रा. तो पुलिस रिफॉर्म्स अगर हो जाएं जिस तरह के हम लोगों ने मांगे थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया वो ऑर्डर, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इन जनरल जस्टिस और इनजस्टिस इन आवर सोसाइटी. सिमिलरली नर्मदा बचाओ आंदोलन में लाखों आउस्टीज थे who would be ousted by this dam, और वहाँ पर ज़बरदस्त एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट होना था, एंड सो ऑन. एंड देयरफॉर by doing that case and by ensuring कि भाई environmental concerns are taken care of and rehabilitation of these people is done before they are ousted etc., उससे बहुत लोगों का फ़ायदा हो सकता है और हुआ भी. सो और दूसरी बात पब्लिक इंटरेस्ट जो तुम कह रही थी ना, you see public interest case जब आप करते हैं, because I have been doing primarily public interest cases, so it gives you the opportunity
to understand those issues from the best experts, best independent experts at very close quarters, and therefore while doing that case you also come to learn a lot. जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो केस था, उस केस को करते समय बिकॉज सो मेनी ऑफ दीज नर्मदा बचाओ आंदोलन एक्टिविस्ट हैड वर वेरी ब्राइट पीपल, IIT वगैरह के लोग थे who had become NBA activists, who had studied the whole environmental law threadbare, who studied the law relating to rehabilitation threadbare, who studied कि भाई अच्छा इससे क्या environmental problems हो रही हैं, क्या displacement की वजह से इन लोगों का क्या हो रहा है, threadbare, and therefore you come to learn not only a lot about society but also about those areas of law like environmental law or law relating to land acquisition and displacement वगैरह. जैसे आजकल हम लोग ये वैक्सीन पर एक पिटिशन पे काम कर रहे हैं, ये कोविड वैक्सीन के बारे में. तो व्हेन यू वर्क ऑन सच ए पिटिशन एंड यू वर्क विद सम ऑफ द foremost experts on vaccines, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते समय यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ वन थिंग, वेरी वेरी केयरफुली माइंडफुल. पहली बात, यू हैव टू हैव द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट. You don't go to court in a PIL unless you have consulted the best possible experts on that subject and you have the best possible understanding of that subject. Second, when you file a PIL, you first have to think about कि अच्छा हम प्रेयर क्या कर रहे हैं, हम कोर्ट से चाहते क्या हैं. Suppose you file a petition against corruption एंड यू से कि अच्छा भाई प्रेयर आपने कर दी कि कोर्ट जो है शुड ऑर्डर कि करप्शन हिंदुस्तान में ख़त्म हो जाए. अब ना उससे तो कुछ नहीं होगा, कोर्ट के ऑर्डर करने से करप्शन थोड़ी ख़त्म हो जाएगा. देयरफॉर यू हैव टू गिव ए प्रैक्टिकल सोल्यूशन कि करप्शन किस चीज़ से ख़त्म हो सकता है. जब हम लोग ने लोकपाल बिल बनाया था, देन वी थॉट कि अच्छा अगर ऐसा लोकपाल की जैसा इंस्टीट्यूशन बनता है तो उससे करप्शन काफ़ी कंट्रोल हो सकता है. इन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली बनाया ही नहीं, मतलब बोगस सारा ख़त्म ही कर दिया. या जब हम लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन की लड़ाई लड़ी थी, वी रियलाइज कि अगर ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का कोई कानून या रूल्स आते हैं बाय विच पीपल कैन फाइंड आउट कि भाई पब्लिक अथॉरिटीज़ कर क्या रही हैं, ये वैक्सीन के बारे में भी नाउ वेरी लिटिल इज़ नोन कि इन लोगों ने ये वैक्सीन अप्रूव कैसे करें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है ही नहीं. कि ट्रायल्स भी नहीं हुए, फेज 3 ट्रायल्स भी नहीं हुए, ह्यूमन ट्रायल्स भी नहीं हुए, बगैर ट्रायल्स के आपने अप्रूव कर दिए. पहले कहते हैं कि हमने इमरजेंसी में अप्रूव कर दिया और ट्रायल आप लोग वैक्सीन देना शुरू कर दीजिए और दैट ट्रीट दैट टू बी ए ट्रायल, और बाद में वो भी ख़त्म कर दिया, बोल दिया कि अच्छा ठीक है आप ट्रायल भी मत करिए, आप वैक्सीन देते रहिए. सो देयरफॉर यू नीड टू बी क्लियर कि आप रिलीफ क्या मांग रहे हैं कोर्ट से, एंड दैट रिलीफ हैज़ टू बी समथिंग विच the court can order. And thirdly you have to think कि भाई अच्छा इसका लीगल बेसिस क्या है. मान लीजिए हम लोग ये मांगने चाहते हैं, जैसे एक केस अभी हम लोगों ने फाइल किया है कि ये जो इन लोगों ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कि भाई अब जो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स हैं विच आर लेस देन 100 किलोमीटर्स इन लेंथ, उस पर कोई एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं. सो वी गो टू कोर्ट चैलेंजिंग दिस नोटिफिकेशन एंड पॉइंटिंग आउट कि भाई इससे तो बहुत ज़्यादा, इसका तो ये मतलब होगा. अब तो खैर ये लोग ये करने लगे हैं कि जो 500 किलोमीटर की भी जो रोड है 4 धाम की, उसको भी इन लोगों ने डिवाइड कर दिया इनटू सेक्शंस ऑफ 30 किलोमीटर ईच, और कहते हैं पूरी 500 किलोमीटर रोड के लिए भी कोई एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगा. So, but the main thing that I was saying is कि public interest litigation जब आप करते हैं केयरफुली करने की ज़रूरत है.
तब यू गेट टू लर्न. हमने तो अपनी पूरे करियर में इतनी सारी चीज़ें सीखी. ऑफ कोर्स द फैक्ट दैट आई हैड अ साइंस बैकग्राउंड एंड आई हैड सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस हेल्प्ड इन ऑल दिस. बट इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी अबाउट न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, अबाउट सॉफ्ट ड्रिंक्स, अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, अबाउट सो मेनी थिंग्स. And I got the opportunity to interact with the world's best experts on these subjects and learn a lot from them. You get a ringside view of all this. People, the world's best experts sit with you one to one and explain to you कि भाई इसमें क्या है, क्या एस्पेक्ट्स हैं वगैरह. तो बहुत कुछ सोसाइटी, नॉट जस्ट लॉ, सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं which you don't otherwise come to learn. So it's a great learning opportunity. So lastly I would like to say कि देखो हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में आज बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत ही ह्यूज. आई मीन दिस कोविड इज़ वन एग्जाम्पल. ऑफ कोर्स इन माई व्यू ये सब लॉकडाउन वगैरह करने की कोई ज़रूरत थी नहीं. इफ़ वी हैड नॉट डन ऑल दिस, कोविड वुड हैव पास्ड ऑफ लाइक अनदर सॉर्ट ऑफ मेजर बाउट ऑफ फ्लू टाइप का, बिकॉज इट इज़ नॉट एनी मोर सीरियस. और तुम लोगों को तो कोविड से कुछ भी नहीं होगा. अगर तुम लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो भी गया तो वर्चुअली नथिंग विल हैपन टू यू. एंड इवन टू मी, एनीबडी हु इज़ हेल्दी इज़ हार्डली अफेक्टेड बाय कोविड. बट इन लोगों ने सब सारी लॉकडाउन वॉकडाउन कर आके स्कूल्स बंद कर दिए साल भर के लिए, कॉलेजेस बंद कर दिए, अभी भी कॉलेजेस खुलने नहीं दे रहे हैं. मतलब बहुत ही हैवक क्रिएट कर दिया है पूरी दुनिया में. एंड इन माई अंडरस्टैंडिंग द पुश इज़ कमिंग फ्रॉम दीज वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्योंकि more than 1 lakh crore is riding on these COVID vaccines. And इतना ज़्यादा पैसा is being given to various regulators, to various media organizations to just create this push for vaccines, जो कि unnecessary. Anyway, so बहुत बड़ी there is a huge problem of climate change which threatens the very existence of human life on earth. अगर हम लोगों ने इस climate change के बारे में कुछ नहीं किया, and if we go on as we have been going on as always with increased carbon emissions or even carbon emissions at the present level, तो human life on this planet will become virtually impossible in another 50 years. During your lifetimes, human life on this planet will become exceedingly difficult during your lifetime if we are not able to tackle this problem of climate change. उसके साथ साथ आज जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं और कंट्रीज़ में भी ये ट्रेंड दिख रहा है, we are gradually creating a polarized society जहाँ पर हिंदू मुस्लिम और ब्लैक एंड वाइट, अमेरिका में उस बेसिस पर पोलराइजेशन क्रिएट कर दिया गया. अमेरिका में ट्रंप ने किया, यहाँ पर मोदी जी कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर, बीजेपी वाले और आरएसएस वाले. तो एक तो ये पोलराइजेशन क्रिएट किया जा रहा है विच इज़ वेरी वेरी बैड फॉर सोसाइटी. आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है अननेसेसरीली. एंड दूसरी बात, यू हैव एंड ये ट्रेंड इंडिया में भी है, अमेरिका में भी. देर इज़ एन अटैक ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड देर इज़ एन अटैक ऑन ट्रूथ इटसेल्फ. एंड वी आर ग्रेजुअली क्रिएटिंग व्हाट इज़ नोन एज अ पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी, टोटली अनसाइंटिफिक एंड ए पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी. ऐसे ऐसे अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं और gradually people have begun to lose their understanding of how to distinguish between truth and falsehood. कुछ भी आप प्रोपोगेंडा की तरह चला दें and that can be passed off as the truth. बिल्कुल झूठी झूठी चीज़ें, इतने आजकल ये फेक वीडियोस और झूठी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करी जा रही है और ज़्यादातर लोग बिलीव कर लेते हैं.
And this is a very, very serious threat to society. So I'm just giving these as a couple of examples. There are other very, very serious problems which are happening. And therefore, as lawyers are also supposed to be very aware citizens of society. They are supposed to have, क्योंकि constitution की understanding है, constitution is the document which gives you an understanding of how this polity and how this society is structured and how it functions. कैसे decisions लिए जाते हैं, क्या इसके checks and balances हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या इंस्टीट्यूशंस हैं विच प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस को कौन कैसे कंट्रोल करता है, वगैरह वगैरह. ऑल दैट अंडरस्टैंडिंग यू गेट as a lawyer because you are supposed to understand the constitution. And therefore, as enlightened citizens of society, which lawyers are supposed to be, one of the jobs of a lawyer, one of the things that lawyers need to do is also to understand the larger problems facing our society and to raise your voice. जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी जरूरी है, चाहे वो भेड़ चाल दूसरी तरफ चल रही हो. जैसे आज ये कोविड का इतना फियर क्रिएट कर दिया गया है, हम तो हर समय उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि भाई फियर अननेसेसरी है. हिंदुस्तान में हर साल फ्लू से 1,27,000 लोग ऑन एन एवरेज मरते हैं. कोविड से 1.5 लाख लोग मर गए एक साल में. So it's just like a sort of bad season of flu, that's all. It's not something to be so worried about कि आप सोसाइटी को ही बंद कर दें, सारे स्कूल्स को बंद कर दें, एक साल के लिए लॉकडाउन लगा दें, सारी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दें. So therefore that is also something. I'm just giving this as an example. I'm saying you need to keep your eyes and ears open to the larger things that are happening in society, not just in law as such, and raise your voice against what is going wrong in society, even otherwise.